Everyone, very good morning my dear second class kids. Welcome to Phoenix International Group of School and welcome back to our 18th session children. So everyone, take out your EVS textbook and open it. Come up to the page number 29. Okay children, page number 29. As we finished our 6th chapter, now we are going to start our 7th chapter. 7th chapter name is, can you spell that? Can you read? Yes, our lesson name is We All Need Water. Okay, what is the lesson name? W-E-V, A-double-L, all. We all, N-double-E-D, need. We all need, W-A-T-E-R, water. So, we all need water. Now children, what do you mean by this? We all need water means, okay, हम सबको क्या चाहिए? पानी चाहिए. हम सबको पानी चाहिए. You know that we are very familiar with the word water, right? हम ये literally बहुत ज़्यादा time listen करते हैं, बोलते हैं, right? We use in our daily life also water, water. Water is nothing but पानी जो हम पीते हैं children, and we use in some different activity. Now, today in this lesson we will see where we are using the water, what is the use of the water, from where we are getting the water, okay, and what activities we need water to perform. Let's see. Keep your finger over there. First line. Water is one of the nature's most important gift to mankind. Okay. Water क्या है? एक बहुत ही important gift है हमारे लिए. Okay. Nature से जो हमको मिलता है बहुत ही natural thing है, which is a very good gift for us children. Okay. Now look at this picture given below and write how we use water. Choose the words from the help box. Okay. Now what you have to do? We have to look at these pictures. हमको ये pictures को observe करना है. Whatever given here, this picture and this, all 6 pictures we have to observe, and we have to write the names of that picture. For what purpose we are using the water children. Okay. पिक्चर को ऑब्जर्व करेंगे एंड वो पिक्चर में हम वाटर को किस लिए यूज़ कर रहे हैं उसका हम नेम लिखेंगे. ओके. For writing that name, you are having a hint box below. You can see below, I have marked here. So, we can use this hint box to fill up these blanks children, okay. Now, first one. Can you observe this first picture and tell me for what we are using water? What the boy is doing? Yes, in first picture, boy is drinking water. So, water हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए, राइट चिल्ड्रन. सो वी हैव टू राइट ड्रिंकिंग. नाउ वेयर इज द ड्रिंकिंग इन दिस हिंट बॉक्स? ड्रिंकिंग इज हियर. सो वी हैव टू कॉपी दिस स्पेलिंग इन दिस फर्स्ट पिक्चर, ड्रिंकिंग. ओके. व्हाट इज द स्पेलिंग? D-R-I-N-K-I-N-G, drinking. Okay. Now second picture, we can see what the woman is doing in that. Girl or woman, she is cooking in the kitchen, right children. वो क्या कर रहे हैं कि किचन में कुक कर रहे हैं. सो फॉर व्हाट वी आर यूजिंग वाटर? वी आर यूजिंग वाटर फॉर कुकिंग. वेयर इज कुकिंग इन द हिंट बॉक्स? इन हिंट बॉक्स कुकिंग इज हियर. ओके. नाउ हियर. सो वी हैव टू राइट कुकिंग इन दिस पिक्चर. व्हाट इज द स्पेलिंग? C-O-O-K-I-N-G, cooking. Okay. Now the third one, what the boy is doing in the bathroom? He is taking bath, right children? He is taking bath. Okay. So he is bathing. We have to write bathing. नहाने को हम बोलेंगे bathing. Drinking किसको बोल रहे थे हम? पानी पीना. ओके. उसको पीने को बोल रहे हैं drinking. एंड जो हम कुक करते हैं, जब हम पकाते हैं उसको बोल रहे हैं cooking. एंड जब हम नहा रहे हैं उसको बोलेंगे bathing. ओके. So B-A-T-H-I-N-G, bathing. Where the bathing word written in the hint box? It is here. So you have to copy the same thing, bathing. Okay children. Now coming up to the fourth picture. Now what the woman is doing? She is washing clothes, right children. वो कपड़े धो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? washing clothes. So हम यहाँ पर water हम clothes wash करने भी use करते हैं. Where the washing clothes written in the inbox? It is here. Copy down the same. W-A-S-H-I-N-G, washing. C-L-O-T-H-E-S, clothes. Washing clothes. Okay. Now next fifth picture. What she is doing children? She is cleaning utensils. वो बर्तन धो रहे हैं, right? We eat 3 times in a day, and after eating what we do children? We again clean the utensils for preparing for the next lunch or dinner something, right children?
सो यहाँ पर क्या करते हैं हम, बर्तन क्लीन कर देते हैं ईटिंग करने के बाद. सो व्हाट शी इज़ डूइंग, शी इज़ क्लीनिंग यूटेंसिल्स. उसके लिए भी वाटर यूज़ होता है. विदाउट वाटर कैन वी क्लीन द यूटेंसिल चिल्ड्रेन? नो, वी कैनॉट क्लीन द यूटेंसिल्स. सो वी आर राइटिंग हियर क्लीनिंग utensils. Okay, now where is the written? It is written here. बर्तन साफ़ करने को बोलेंगे क्लीनिंग यूटेंसिल्स, और उसमें भी वाटर यूज़ होता है. नाउ लास्ट पिक्चर, कैन यू गेस दिस लास्ट पिक्चर? यस, पुटिंग आउट फायर. हमने कई बार सुना है कि यहाँ पर आग लग गया है, वहाँ पर आग लग गया है, राइट चिल्ड्रन. अपने नेबरहुड में कहीं पर भी अगर फायर हो गया है तो हम क्या करते हैं, हमको फायर को कम करने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है. ओके, सो पुटिंग आउट फायर. सो इन दैट सीन ऑल्सो वी वॉन्ट वाटर. सो वी आर putting out fire here. Okay, we need water. So in all this activity number 1 to number 6, these are our daily life activities in which water is plays very important role, and it's very crucial for us children, right? कि ये सारे एक्टिविटीज़ हैं जो हम अपने डेली लाइफ में करते हैं. जैसे पानी हम रेगुलरली पीते हैं, एंड कुकिंग हम रेगुलरली करते हैं तो वहाँ पर भी पानी की ज़रूरत होती है. बाथिंग भी करते हैं तो वहाँ पर भी पानी चाहिए हमको. वॉशिंग क्लोथ्स हैं, वहाँ पर भी पानी की ज़रूरत होगी. क्लीनिंग यूटेंसिल्स, बर्तन साफ़ करने पर भी हमको पानी चाहिए. एंड अगर कहीं पर आग लग जाए तो वो फायर को पुट आउट करने के लिए भी हमको क्या चाहिए, वी वॉन्ट वाटर चिल्ड्रन, राइट. सो ऑल दिस, इन ऑल दिस एक्टिविटी वी यूज़ द वाटर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज फ्रॉम वेयर वी गेट दिस वाटर. हमको ये वाटर एक्चुअली मिल कहाँ से रहा है, हम ये कहाँ से ऑब्टेन कर सक रहे हैं वाटर को. वी विल रीड. नाउ टर्न अप योर पेज एंड कम टू द नेक्स्ट पेज. Page number 30. Let's read from here. We know that the upper part of mountains are covered with snow during summer. Now summer season में क्या होता है चिल्ड्रन, हमारे माउंटेन्स के जो ऊपर का पार्ट होता है वो किससे कवर्ड होता है, पूरा स्नो आ जाता है. ओके, जो एरियाज़ हैं जहाँ पर स्नोफॉल होता है, जहाँ पर शबनम गिरता है, वो पूरे माउंटेन्स में वो स्नो से कवर्ड हो जाते हैं माउंटेन्स. The snow on the mountains melts and changes into water. Now जो वाटर जो स्नो है जो माउंटेन्स पर गिर गया है वो क्या होगा, वो मेल्ट होगा, राइट. वो भी एक बर्फ़ से होता है. स्नो ऑल्सो इज़ समथिंग लाइक अ आइज़ ओनली. तो वो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, पूरा घुल जाता है. एंड वो स्नो कन्वर्ट किस में होता है, वाटर में कन्वर्ट होता है. ओके चिल्ड्रन, and changes into the water. This water comes down in the form of streams and rivers. So यही वाटर हमको किस फॉर्म में वहाँ से रिलीज़ होता है, माउंटेन के पास से रिवर्स या फिर स्ट्रीम्स के ज़रिए से रिमूव होता है वहाँ से. ओके, नाउ plants and animals need water. We can see in the picture also. In picture plants also and some animals also, what they want children, these plants and these animal they also want water. जिस तरह से ह्यूमन लाइफ में वाटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, हम अपने कई सारे एक्टिविटीज़ के लिए क्या करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं, वैसे ही प्लांट्स को भी एज वेल एज एनिमल्स को भी वाटर की ज़रूरत होती है चिल्ड्रन. ओके, तो ये वाटर हमको कहाँ से मिल रहा है, दिस सपोज माउंटेन्स पर जो स्नो रहती है वो मेल्ट होकर के हमको रिवर के फॉर्म में आती है चिल्ड्रन. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ. अर्थ पर जो है हमारे ज़मीन पर हमको पानी कैसे मिलता है, मेन सोर्स क्या है उसका, मेन सोर्स है रेन. अगर रेन होगी तो तभी हमको वाटर मिलता है चिल्ड्रन. ओके, सो रेन एक मेन सोर्स है जो वाटर हमको अर्थ पे मिलता है. ओके, इट फिल्स रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स. नाउ रेन क्या करता है चिल्ड्रन, जैसे ही रेन हो रहा है, बारिश होता है, वो किसको फिल करता है, रेन को, पॉन्ड्स, रिवर को, पॉन्ड्स को, लेक्स को, सीज, ओशंस जो हमारी समंदर होता है एंड हमारी नदी होती है, राइट चिल्ड्रन. कुछ वैलीज़ भी रहते हैं जिसको क्या करते हैं, पॉन्ड, छोटा सा तालाब जो होता है हमारा. ओके, सो इसमें पूरा वाटर कहाँ से आता है, रेन ही फिल करता है. ओके, सो वी व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर चिल्ड्रन, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ water. Okay, let's see, the first one is rain. Okay, first picture, see here I am marking, no, see below, this is rain. Okay, now rain fills what children, water. rain water को fill करता है, rain lake को fill करता है, pond को fill करता है, stream को भी fill करता है. Okay, and इतने सारे places से हमको फिर से water मिलता है. Is it done children? So what is the main source of water? Rain is the main source of water. Okay, so
नाउ वाटर वी आर गेटिंग पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, लेकिन वो वाटर हम तक किस तरह से पहुंच रहा है, दैट वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रन. ओके, so you have to remember till here whatever I taught you. Now come up to our homework. This is, as you know, 7th lesson we started. We have to write a lesson name. We all need water. Okay, हमको वहाँ पर lesson name लिखना है. We all need water. Write any 5 uses of water. हमको क्या करना है कि 5 uses of water. Water हम अपने daily life activities में कौन सी एक्टिविटी, ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम वाटर यूज़ कर रहे हैं चिल्ड्रन. ओके, वैसे हमको 5 एक्टिविटीज़ यहाँ पर मेंशन करना है. ओके, फर्स्ट वन आई रोट ड्रिंकिंग, नेक्स्ट वन कुकिंग, नेक्स्ट bathing, next washing, and last one is cleaning children. Okay, so what I wrote here, drinking, cooking, bathing, washing and cleaning. Drinking means पीना, right? Cooking पकाना, bathing नहाना, washing that is nothing but here कि कोई चीज़ हम साफ़ करना. ओके चिल्ड्रन, धोना जैसे हम कपड़े धोते हैं या फिर बर्तन एंड ऑल करते हैं. एंड क्लीनिंग फॉर द साफ़ करने के लिए भी हमको वाटर चाहिए होता है. सो इन ऑल दिस एक्टिविटीज़ वी आर यूजिंग वाटर. ओके, यू हैव टू राइट दिस इन योर नोट्स वन टाइम. आप ये अपने नोट्स में, EVS नोट्स में वन टाइम लिखेंगे. एंड यू हैव टू लर्न दिस चिल्ड्रन. ओके, लर्न दिस 5 uses of water. In our next session I will ask you the oral test that tell me any 5 uses of water. If I ask you this question, then you have to tell me these 5 uses of water children. Okay, I'll be back with the next video. In that we'll continue our lesson and we will see the further one. Till then, take care and have a nice day everyone.